Hello dear students, so today we are going to discuss 4.5 that is Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law को दूसरी तरह से ऐसे भी देखा जाता है कि वो है magnetic field due to a current element. So as we discuss, whenever there is a charge moving, so it feels the magnetic field. तभी उसको magnetic field feel होता है या बोलो कि it produces the magnetic field. So Biot-Savart law से हमें क्या मालूम पड़ता है? It gives us the magnetic field which is produced by the moving charge. Magnetic field है वो दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है. One is due to the current in a moving charge. अगर चार्ज मूव हो रहा है तो obviously we can say that it is a current. तो जब भी कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, that means it produces the magnetic field. Another way is we are having some magnetic materials, okay, जो उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फील्ड जनरेट करना. So that is the another way. But we are going to talk about the first one, that is the magnetic field produced by the moving charge or say by the currents, right? So what Biot-Savart did is he has considered a conductor. Okay, एक वायर आप कंसीडर कर लो, x to y एक वायर है, right? And for that he found the magnetic field produced by the conductor, right? So यहाँ पे हम क्या करेंगे? We will take a small element, right? Over here I am taking a small element, तो इसे बोलेंगे dl, very small infinitesimal element, right? And over here let us consider that the current passing through the wire x to y जो वायर है उसमें से मान लो कि I करंट है वो फ्लो हो रहा है, right? Now if I want to find out the direction of current, if I want to find out the direction of current element in this particular element, then it would be what I have to do, I just need to draw the tangent. मुझे सिर्फ ये tangent draw करना है and that will give me the current element direction which is IDL. Please take care that DL is a vector quantity. ठीक है, वो एक particular direction को represent करता है, right? Okay. Now let us consider that I want to measure, I want to find out the magnetic field dB. The magnetic field मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? It is, what is dB? So it is magnetic field produced by current in dl, current in element dl, current in element dl. अभी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, राइट? सो लेट अस से दिस पॉइंट इज p. सो व्हाट आई विल राइट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन एलिमेंट dl एट पॉइंट p. अभी पॉइंट p कहां पे है वो भी तो लोकेशन देना पड़ेगा, राइट? सो एट पॉइंट p which is, let us say, r distance away from element. ठीक है, सो इस तरह से हम dB को डिफाइन कर रहे हैं. तो अभी r डिस्टेंस भी दिखाना पड़ेगा. सो लेट अस से दिस इज द एलिमेंट एंड फ्रॉम एलिमेंट दिस डिस्टेंस इज r. ठीक है, बराबर से ध्यान रखना है बिकॉज इन प्रीवियस थियरी वी वर हैविंग अ थिंग which was magnetic field, but this was a external magnetic field, right? There was a field but ये था external magnetic field. ये क्या है? dB क्या है? dB is the magnetic field which is produced by the conductor itself. वो हम मेजर करना चाहते हैं. So please be careful about this. Magnetic field is everywhere. जैसे कि ये dl है तो यहाँ पे भी magnetic field है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सभी जगह पे magnetic field है, but its intensity is varying, right? तो मुझे किसी एक particular point पे magnetic field find out करना पड़ेगा, right? So I hope it is clear. Now what the Biot-Savart said, okay? तो Biot-Savart ने एक equation दिया था which is dB is proportional to
IDL, I vector DL cross vector R divided by R cube, right? So what is said was magnetic field produced is proportional to the current element. First one, it depends on the current element. Second, it depends on the distance, r स्क्वायर, ठीक है, वो r स्क्वायर के हिसाब से है। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैंने r क्यूब लिखा है, लेकिन यू विल शॉर्टली रियलाइज कि ये सही है, राइट? ओके, सो ओवर हियर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, सो आई विल रिमूव दैट साइन and for that I have to introduce a new proportionality constant, that is mu 0 by 4 pi, right? Okay, then after rest of the things are as it is, right? So what is this? This is a proportionality constant, ठीक है? म्यू 0.4 पाई की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू -7 टेस्ला इनटू मीटर बाय एंपियर, वेयर म्यू 0 इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ डिस्कस करने वाले हैं, राइट? बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट रिमेंबर द वैल्यू, एंड म्यू 0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, राइट? नाउ इफ I will represent this dl cross r, which is a cross product, right? तो यहाँ पे आप देखो कि if the angle between the IDL and the r is theta, IDL into r is theta, then what I can say is dB, magnitude of dB can be expressed as mu 0 upon 4 pi IDL into r into sin theta। तो मैंने क्या किया, dl क्रॉस r को dl r sin theta से रिप्रेजेंट किया, राइट? एंड देन आफ्टर आई डिवाइड इट बाय r क्यूब। तो अभी आपको पता चलेगा कि मैंने r स्क्वायर क्यूब बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक r है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी idl डिवाइड बाय idl sin theta डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये होता है magnitude of the magnetic field, so what you should know in Biot-Savart law is two equation, ठीक है? आपको एक ये इक्वेशन मालूम होना चाहिए और एक मैग्नीट्यूड का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज द डायरेक्शन। तो अभी डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन यहाँ पे दिखाना कैसे है, राइट? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हमारी गलती हो सकती है, राइट? सो देखो ये पार्ट आप ध्यान से देखना, देयर इज अ एलिमेंट r, ओके, एंड देयर इज अ एलिमेंट dl, ओके। इन दोनों के बीच का जो भी वेक्टर प्रोडक्ट है दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि बाकी दो क्वांटिटी है वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट? So as we know, whenever we are having a cross product of two vectors, then the answer vector is always perpendicular to both of them, right? तो यहाँ पे आप देखो कि ये dl वेक्टर है, ये r वेक्टर है, इन दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर हो ऐसा, राइट? So it is always a plane, right? This is a plane, dl और r जो प्लेन बना रहा है उसका परपेंडिकुलर, so it is either coming out और गोइंग इनसाइड, राइट? तो कैसे करेंगे? राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, राइट? सो राइट हैंड रूल में व्हाट वी हैव टू डू, dl क्रॉस r जाना है आपको, dl से r जाना है, राइट? ओके, सो आई हैव टू कर्ल माय फिंगर लाइक दिस, ओके, और यू कैन से इफ यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ओके, सो इन दिस केस द डायरेक्शन will be the cross product, right? Okay, so over here this is how you can decide. आप अगर बुक में देखोगे तो लास्ट लाइन में this thing has been mentioned, okay? एकदम नीचे एकदम लास्ट में है, okay? So
this is how you can decide, right? Now let us try to compare the Coulomb's law of forces and the Biot-Savart's law. So let me remove this. I am just writing the equation of both. So yeah, पहले डी बी के लिए लिख लेते हैं. सो इट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. ठीक है. एंड if I will write about the Coulomb's law, then इसके लिए मैं Coulomb's law तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख रहा हूँ, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर और यहाँ पे होता है यूनिट वेक्टर r. सो इफ वी कंपेयर दिस, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन आवर माइंड इज हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं. मतलब क्या क्या सिमिलरिटीज है वो भी देखेंगे और अगर कुछ कंट्रास्ट है, कुछ डिफरेंसेस है तो वो भी हम मेंशन करेंगे. सो ओवर हियर यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो ये सिमिलरिटी तो इसमें भी है. इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 by r square, and same thing is over here, it is 1 by r square. So that is there, right? फिर yeah, dependent in both the cases we can apply the superposition principle. So same thing is applicable, we can apply superposition principle in this case also, right? Third point is yeah, the electric field produced by the scalar source. देखो ये इक्वेशन आप ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए लाइक इट इज प्रोड्यूस्ड बाय whom, इसका सोर्स क्या है. सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज. ओके, और चार्ज है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, which is a electric charge. But over here the magnetic field is produced by the vector. It is produced by the vector which is a current element. It is a current element. So that is third point. Now third point के बाद यहाँ पे fourth point. So fourth point is about the direction of electric field. अगर मैं आपको इसकी डायरेक्शन पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, then your answer is electric field is always in the direction of the line joining the source and the point. जो भी source है वहां से point तक की line खींच लो and that will be a direction of unit vector. Unit vector की जो direction है वही electric field की direction है. Okay, तो यहाँ पे क्या है? Direction of E is same as vector r. In this case, what is happening? अगर डायरेक्शन ऑफ dB क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर ऑफ dl एंड r. ठीक है, जो भी dl और r का परपेंडिकुलर होता है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ dB. तो इसमें थीटा की डिपेंडेंसी रहती है, राइट? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, राइट? फिफ्थ पॉइंट इज दिस कि अगर यहां पे आइडियल sin theta, if the theta is 0, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, and this is the IDL, and if my point is located on the same line, अगर मेरा पॉइंट है at which I want to find out the magnetic field, वो पॉइंट अगर इसी लाइन पे है, right? So in this case the field angle is 0, theta is 0, okay, when point
P is on line IDL, ठीक है। तो उस टाइम पे थीटा 0 हो जाएगा एंड आई कैन से दैट dB इज आल्सो 0। तो उस पॉइंट पे, उस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। इन दिस केस ऐसा कुछ नहीं है, लाइक वी कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, राइट। तो देयर इज नो सच थिंग फाउंड, राइट। So these are the 5 points that you can keep in mind between the electrostatics, electric field और यहाँ पे magnetic field के बारे में। अब बात करते हैं about this constant mu 0 by 4 pi। So mu 0 by 4 pi, right? अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कुछ ऐसा था which was 4 pi epsilon 0, राइट। सो यहाँ पे म्यू 0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। इफ आई विल मल्टीप्लाई म्यू 0 एंड एप्सिलॉन 0, इफ आई विल मल्टीप्लाई द म्यू 0 एंड एप्सिलॉन 0, तो मान लो कि मैंने 4 पाई से मल्टीप्लाई किया और 4 पाई से डिवाइड किया इस इक्वेशन को। सो इट इज म्यू 0 बाय 4 पाई एंड 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। सो एज वी नो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज 10 raised to -7, राइट, ओके। एंड 4 पाई एप्सिलॉन 0 की बात करें so it is 9 into 1 upon 9 into 10 raised to 9, right? So what I can write now? It is 1 upon 9 into 10 raised to 16. So that can be written as 3 into 10 raised to 8 whole square. और ये क्या है, right? What is this? It is c, 3 into 10 raised to 8, that is the speed of light, okay? एंड उसका स्क्वायर, सो इट इज 1 अपॉन c स्क्वायर। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ म्यू 0 इनटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c स्क्वायर होता है, राइट, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बायो सावर्ट लॉ में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।